So here we have taken what the 4-digit number for linear probing example as well as quadratic probing example. Okay, so I will tell you what is quadratic probing. Before that, we will do the once again the practice on linear probing only. Okay, so again the same thing that these are the data we have to insert into the hash table. Yes, then this is what 0 to 9 buckets are given. That is what the table size you are using 10. Okay, the table size is what 10. Okay, 0 to 9 buckets you are using means your table size is 10. Your first data you want to insert with the method linear probing is 4371. Your first data is what 4371. So 4371 mod 10 gives you remainder what 4371 mod 10 remainder क्या आएगा 1. Okay, so here on 1th position the element 4371 will get stored. Okay, next data we want to insert into table is what 1323. Okay, so 1323 mod 10, so the remainder will be 3. Okay, due to mod 10 whatever will be the last value will be your remainder. Keep in mind this thing, or otherwise you may calculate by yourself. Your mathematics is what too good. Okay, so 1323 mod 10 you will get remainder 3. That is what the last digit. Okay, so on third position we will store the second number 1323. Is it clear? Okay, now next number is 6173. So if I go for 6173 mod 10, so but obvious again the last digit is 3, so remainder will be 3 due to mod 10. So now again in linear probing what we normally do, so here the we got two synonyms here, right? We got two synonyms here. So 1323 and 6173 are synonym. So currently we are talking about, so currently we are talking about 6173 only. Okay, so its position is third, but on third position there is element 1323. So what we have to do, both are synonym. We will move towards next empty, simply move towards next empty location, and we will insert element 6173. We will insert element 6173. Okay, next element we want to insert, that is 4199. That is what 4199. What we are doing, we are trying to compare the same example on linear probing as well as quadratic probing. So in today's session we are not considering the chaining part. Okay, so here we are not showing any chaining part, right? It is just by linear method or linear probing method. Okay, so next element we want to insert is 4199. So 4199 mod 10 will give you 9 remainder. Okay, so check out the last position. So we will go to the ninth position and it is blank, so we can insert in linear probing 4199. Actually this method is quite simple than other method linear probing. Okay, next element we want to insert is what, just a minute. Next element we want to insert is what 4344. It is what 4344. So if I go for this, then its remainder will be 4. So its remainder will be 4. So to insert element 4344, check out the position of 4 and it is what occupied. So what linear probing say, if that particular element or that particular position is occupied, then we have to shift towards next empty location and we will insert this element into that next location, right? So we will come up to this. Next is what 9679. 9679 mod 10 gives you what again 9. But what happened with 9? Already ninth location is occupied.
ओके, सो नाइन्थ लोकेशन इज ऑक्यूपाइड. जब नाइन्थ लोकेशन ऑक्यूपाइड होता है तो टेबल यहाँ पे फुल होता है क्या? नहीं. सो वी विल रैप अराउंड टू द स्टार्ट पोजीशन एंड एट स्टार्ट पोजीशन वी विल इंसर्ट. इफ location is empty, then we will insert this element to the what? Start position. Okay, fine. Next is 1989. 1989. Okay, so if you find out 1989 mod 10, so it's again we got the remainder 9. So if you observe, then here we got the synonym 9 here again. Sorry, whose hash function is 9. Again it is what? 4999. So these are what? 4999, 9679, 1989, all are synonym. But currently we are looking for only linear probing examples. So here there is no need to mention what? The chaining part. Is it clear? Now we are talking about the last number 1989. Okay, so its mod is 9, but if you observe, then its ninth location is what? Occupied. Its ninth location is occupied, so we will wrap around to the start position, to the 0th position, but it is also occupied. Check out whether whether there is next empty location. So it is also occupied, so we got the next empty location at second position. So wherever you will get the next empty location, you will store the value on that location only. Is it clear? So linear probing concept is quite simple. Okay, it is quite simple than other methods. Okay, fine. So I hope you are able to solve this example by linear probing method. Yeah. Yes, ma'am. Yes, okay, fine. So it is quite simple method. Today we are more interested in the next collision resolution strategy, that is what? The quadratic probing. Okay, so we are interested in the part of what? Quadratic probing. So what is quadratic probing? So in quadratic probing, here we add offset by amount square of collision probe number. कोलिजन प्रोब नंबर, इसका मतलब ये है कि कितने टाइम्स हमको कोलिजन मिल रहा है, कितने टाइम हमको ऑक्यूपाइड पोजीशन मिल रहा है. वी विल काउंट इट एंड विल मेक स्क्वायर ऑफ दैट collision probe number. Okay, in quadratic probing the empty location is searched using the following formula. एम्प्टी लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में? सो हैश ऑफ की, वी नो दैट कि कोई भी की होता है, कोई भी डेटा होता है, तो उस पर हम क्या करते हैं? वी अप्लाई वन हैश फंक्शन ऑन दैट की. ओके, प्लस आई स्क्वायर. आई स्क्वायर मतलब अभी हमने क्या देखा कि जहां पे भी कोलिजन आ रहा है उसका स्क्वायर फाइंड करना है. अब तक हमने जितने भी हैश फंक्शन देखे हैं तो वो हैश कैसे अप्लाई किया है? सिर्फ की पे अप्लाई किया है, दैट विल बी अवर हैश एड्रेस. Okay, normally what practice we have done to find out the hash function. So जैसे कि अभी भी हमने क्या यूज किया है? हैश ऑफ की यूज किया है. ओके, दैट्स इट. ये करके हमने क्या निकाला है? जो भी हमारा एड्रेस है या पोजीशन है वो निकाला है. सो दिस हैश फंक्शन वी आर यूजिंग टिल द टाइम. ओके, एड्रेस इक्वल टू हैश ऑफ की. बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वट एवर विल बी द हैश की, वी found the address by using this hash function plus I square, and then we are going to find out mod max. Till the time we are just go with whatever is the hash key and its mod max. ये ऐसे हम जा रहे थे हैश की mod max. अभी हम क्या कर रहे हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में? हैश ऑफ की प्लस आई स्क्वायर mod max. तो इसमें आई स्क्वायर जो पार्ट है, दिस इज व्हाट न्यू फॉर अस. ओके, ये हमको पढ़ना है क्या है ये. एंड where I lies between 1 to max minus 1 by 2. The quadratic probing works much better than linear probing. ये linear probing से भी इसका जो efficiency है वो ज़्यादा है. But to make full use of hash table, there are constraints on the values of I and max so that the address lies in table boundaries. See, the most important thing is क्या है कि जैसे suppose there is one key
that we want to map to the location J. ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई भी की है, मुझे कोई तो भी लोकेशन J पे उसको स्टोर करना है, कोई भी लोकेशन पे मुझे वो अप्रोप्रिएट लोकेशन पे स्टोर करना है. बट समटाइम्स ऐसा होता है कि वो पर्टिकुलर लोकेशन तो ऑक्यूपाइड है. यस, ये नॉर्मली होता है, हमने ये लीनियर प्रोबिंग में भी देखा है, जैसे कि थर्ड लोकेशन ऑक्यूपाई है तो हम नेक्स्ट पोजीशन पे गए, मगर यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा नहीं करना है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में. अगर मेरा थर्ड लोकेशन ऑक्यूपाई है, देन आई हैव टू चेक आउट इट्स नंबर ऑफ प्रोब. ओके, मतलब क्या उसका जो भी नेक्स्ट, अगर ये लोकेशन ऑक्यूपाई है तो आई गॉट फर्स्ट कोलिजन, तो मेरा प्रोब हुआ यहाँ पे 1. यहाँ पे प्रोब कितना हुआ 1. तो यहाँ पे मुझे जो भी वैल्यू यूज करना है, सपोज ये थर्ड जैसे कि जेथ लोकेशन इज व्हाट माय थर्ड लोकेशन, सो आई हैव टू चेक फॉर j+1, j+ नेक्स्ट वैल्यू, j+1 स्क्वायर, j+2 स्क्वायर, j+3 स्क्वायर. ऐसा मुझे यहाँ पे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में जाना होता है. और ये स्क्वायर फाइंड करने के बाद जो भी हमको पोजीशन मिलता है, तो अगर वहां पे पोजीशन एम्प्टी है तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को प्लेस कर सकते हैं. अदरवाइज कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेबल एम्प्टी है, बट जो फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से एम्प्टी होने के बाद भी कोई एलिमेंट वहां पे प्लेस नहीं हो सकता है. सो दिस मे बी द चांसेस इन केस ऑफ व्हाट, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग. Okay, but basically this table using quadratic probing reduces what, your primary clustering. Okay, so don't bother about it, we are going to solve each and everything. So let's start with the first element. Okay, तो जैसे first element है यहाँ पे 4 3 7 1, तो जैसे यहाँ पे हमने ऑलरेडी कुछ चीजें कैलकुलेट करके रखा है. 4 3 7 1 है, तो 4 3 7 1 mod 10 किया तो यहाँ पे क्या मिलता है 1. तो 1 पोजीशन पे ये चला जाएगा. ध्यान दो, हाँ, जहां पे नहीं समझ में आ रहा है यू मे आस्क. ओके, क्या करना है हमको, अगर एम्प्टी सेल होता है तो अप्लाई नॉर्मल हैश फंक्शन. अभी यहाँ पे हमने क्या किया, जो चीज हमने लीनियर प्रोबिंग के लिए अप्लाई किया था 4 3 7 1 mod 10, वही हमने क्वाड्रेटिक के लिए भी अभी फिलहाल तो भी अप्लाई किया है कि 4 3 7 9 इज माय फर्स्ट एलिमेंट, mod 10 किया, मुझे वैल्यू मिला 1. 1 पे मैंने इसको क्या कर दिया, सिंपली प्लेस कर दिया. ओके, क्यों प्लेस किया, क्योंकि डायरेक्टली वहां पे क्या था, एम्प्टी लोकेशन था, सो आई प्लेस्ड इट. ओके, मुझे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग कब यूज करना है, व्हेन आई फाउंड सम सिनोनिम और कोलिजन. ओके, तब मुझे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग वहां पे अप्लाई करना है. क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का जो भी फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है. ठीक है, my next element is 1 3 2 3. so if we found here 1 3 2 3 mod 10, then it gives me what, third position. so as usual जैसे लीनियर प्रोबिंग में हमने किया था स्टोर, ऑलरेडी थर्ड पोजीशन हमारा क्या है, यहाँ पे एम्प्टी है. एम्प्टी है तो आई प्लेस 1 3 2 3 ओवर हियर. ओके, नाउ माय नेक्स्ट एलिमेंट इज 6 1 7 3. 6 1 7 3. सो हियर जैसे लीनियर प्रोबिंग में कैलकुलेट किया था 6 1 7 3 mod 10 इक्वल टू 3. बट अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्लीज ऑब्जर्व करो. 6 1 7 3 mod 10 किया तो मुझे क्या पोजीशन मिला, थर्ड पोजीशन मिला. बट 6 1 7 3 थर्ड पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है. क्यों, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय सम अनदर एलिमेंट, राइट. तो क्या करना है, तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का जो भी कंसेप्ट है यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई करना है. ओके, 6 1 7 3 को. तो कैसे अप्लाई करोगे, अगेन अनदर क्वेश्चन. तो यहाँ पे जैसे कि हमने नॉर्मल फंक्शन से कैलकुलेट किया, यस, 6 1 7 3 mod 10 इक्वल टू 3 किया तो थर्ड पोजीशन ऑक्यूपाइड था. हमको क्वाड्रेटिक प्रोबिंग कब यूज करना है, जब कोलिजन ऑकर होता है, जब कोई सिनोनिम मिलता है, तो ये कोलिजन रिजोल्यूशन करने की टेक्निक है, स्ट्रेटेजी है. नाउ हियर 1 3 2 3 ऑलरेडी थर्ड पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, सो आई कुड नॉट प्लेस 6 1 7 3 ऑन सेम पोजीशन. तो यहाँ पे लीनियर प्रोबिंग का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हम क्वाड्रेटिक प्रोबिंग सीख रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली नेक्स्ट लोकेशन पे जाके 6 1 7 3 को प्लेस नहीं करना है. यहाँ पे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का हमको क्या करना है, लॉजिक अप्लाई करना है. तो फॉर्मूला क्या देखा हमने, तो जो भी मेरा की है, मेरा हैश की क्या है फिलहाल, सो इट इज व्हाट 6 1 7 3, दैट इज व्हाट माय डेटा की, यू कैन से इट इज की और डेटा, राइट. जस्ट दिस इज व्हाट माय की. ओके, तो फॉर्मूला क्या देखा हमने, की प्लस आई इंटू आई mod 10.
ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, माई की इज 6173, दिस इज व्हाट माई की 6173, ओके, प्लस 6173 इज माई की, प्लस आई इंटू आई। अब ये आई इंटू आई क्या है, आई इंटू आई क्या है कि मुझे प्रोब मिला है, कोलिजन मिला है, कितने टाइम मिला है करंटली, फर्स्ट टाइम कोलिजन मिला है कि 6173 कोलाइड विथ व्हाट 1323, है ना, यहाँ पे कोलिजन ऑकर हुआ है, एक ही पोजीशन पे दो एलिमेंट पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो मुझे फर्स्ट टाइम ऑकर हुआ है ये कोलिजन। अगर आपका प्रोब फर्स्ट आता है, फर्स्ट टाइम कोलिजन ऑकर होता है, सो यू हैव टू यूज 1 into 1 okay, and then go mod for it, okay, 1 into 1 and then find out its mod 10। फिर से मैं बताती हूँ कि यहाँ पे की मेरा क्या है, 6173 इज माई की मेरा क्या है, 6173 इज माई की, ओके, तो हैश की मुझे निकालना था, मैंने लिख दिया यहाँ पे 6173, ओके, प्लस आई इंटू आई करना है, तो आई क्या बोला मैंने, यहाँ पे कितना कोलिजन हमको यहाँ पे मिला है, फर्स्ट टाइम कोलिजन मिला है, सेकंड टाइम मिला है, थर्ड टाइम मिला है, सो करंटली 6173 कोलिज सिनोनिम है 1323 का, तो ये पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। अगर पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो दो एलिमेंट सेम इंडेक्स के लिए, सेम पोजीशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। सो 6173 फर्स्ट टाइम कोलाइड हुआ है ये की के साथ, सो फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट प्रोब है, तो 1 into 1 करना है, गॉट इट। तो क्या आएगा इसका, 1 into 1 क्या आता है, ओनली 1, थोड़ा कैलकुलेशन करो या नोटबुक पे आप ट्राई करो, 1 into 1 क्या आता है, 1, सो 6173 प्लस 1 क्या आया, 6174, क्या आता है ये, इसका आंसर क्या आएगा, हाँ 6174, एंड इसका मॉड 10 आपको करना है, इसका मॉड 10 करना है, सो इट विल बी व्हाट 4, इट विल बी व्हाट 4। तो फोर्थ लोकेशन आपको चेक करना है वेदर इट इज एम्प्टी, यस इट इज एम्प्टी, सो यहाँ पे आप क्या करोगे, 6173 को सिंपली प्लेस करोगे। इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी आर अप्लाइंग क्वाड्रेटिक प्रोबिंग मेथड। कब अप्लाई किया, यहाँ तक हमने लीनियर प्रोबिंग का सिंपली जो भी की था मॉड 10 करके, जो पोजीशन हमको मिला है, जो एड्रेस हमको मिला है, वहां पे हमने एलिमेंट को स्टोर कर दिया है। कब क्वाड्रेटिक प्रोबिंग हमने अप्लाई किया, व्हेन वी फाउंड कोलिजन समवेयर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज व्हाट 4199। सो 4199 के लिए पहले नॉर्मल मेथड से जाते हैं हम, 4199 मॉड 10, so it gives me what 9th लोकेशन। फर्स्ट चेकआउट जो एलिमेंट है वो नॉर्मल मेथड से, अगर नॉर्मल हैश फंक्शन से जाते हैं तो क्या वो एम्प्टी है, यस इट इज एम्प्टी। एम्प्टी है तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का इक्वेशन डालने की जरूरत नहीं है, राइट, यस। नाउ तो यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक 4199 के लिए जरूरी नहीं था क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। नेक्स्ट इज 4344, नॉर्मल मेथड से जाते हैं 4344 मॉड 10, तो हमको क्या मिलता है 4, बट 4344 फोर्थ पोजीशन पे प्लेस करना है, बट फोर्थ पोजीशन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। फोर्थ पोजीशन क्या है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो कोलिजन ऑकर हुआ है, कितना टाइम, कितने टाइम ऑकर हुआ है करंटली, फर्स्ट टाइम कोलिजन ऑकर हुआ है, राइट। So what we have to do, we have to apply the formula of quadratic probing, that is 4344 is our key, first time collision fourth location पे occur हुआ है, तो 1 into 1 mod 10, so our key is 4344, right। So 4344 is our key, first time collision occur हुआ है, तो we have to use 1 into 1, okay, and it's mod 10, mod 10, राइट। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमको आंसर मिलता है, इट इज 4344, 1 into 1 तो 1 ही रहता है, तो ये आया 4345 मॉड 10 किया, तो हमको मिलता है कौन सा लोकेशन, फिफ्थ लोकेशन। जस्ट चेक आउट क्या फिफ्थ लोकेशन एम्प्टी है, क्या फिफ्थ लोकेशन एम्प्टी है, हाँ है, तो वहां पे सिंपली मैंने क्या कर दिया, एलिमेंट को प्लेस कर दिया। आर यू गेटिंग इट? यस। मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है 9679, एलिमेंट है 9679। अगर नॉर्मल मेथड से मैं अप्लाई करती हूँ तो 96
9 mod 10 इक्वल टू आता है 9, बट माय 9th लोकेशन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, है ना, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो क्या होगा यहाँ पे, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो क्या होगा, नाउ यू टेल मी। अभी मैंने नॉर्मल लिनियर प्रोबिंग का हैश फंक्शन अप्लाई करना है या क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का? क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का। बट ऑब्वियस क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का। अभी क्या अप्लाई करूं मैं, माय एलिमेंट इज 9679, हैश की इज इक्वल टू 9679 इंटू आई 1 इंटू 1 मॉड 10। एब्सोल्युटली। क्या लोकेशन मिलेगा मुझे ऐसा किया तो? 0 लोकेशन, एब्सोल्युटली। 0th पोजीशन एम्प्टी है क्या मेरा? सो यस इट इज Yes, एम्प्टी। हाँ, सो वी कैन स्टोर दिस एलिमेंट 9679। सो यू माइट आस्क द क्वेश्चन कि मैडम यहाँ पे तो सब वन प्रोबिंग में हमने वन प्रोबिंग ही मिला है, हैश फंक्शन अप्लाई किया तो हमको आंसर तो मिल रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर द लास्ट एलिमेंट, जस्ट चेक आउट क्या यहाँ पे वन प्रोबिंग में आता है या कैसे आता है। सो इट इज व्हाट 1989, क्या है ये एलिमेंट 1989। ओके, सो व्हाट वी विल डू हियर, वन 1989। सो अगर 1989 को मॉड 10 किया तो मुझे आंसर क्या मिलता है यहाँ पे, इट इज व्हाट 9। ओके, बट माय 9th लोकेशन इज ऑलरेडी occupied, so what we normally do here, my element is 1989 is my element, but that 9th location is already occupied. I found out first collision, so my probe will be 1 into 1 mod 10, 1 into 1 mod 10। तो आंसर क्या मिलता है इसका, 1989 plus 1, it is what 1, it is the answer is 1990, it is mod 10। तो आंसर मिला मुझे 0th पोजीशन। आंसर क्या मिला मुझे यहाँ पे, इट इज व्हाट द 0th पोजीशन, राइट मैम, बट 0th पोजीशन इज ऑक्यूपाइड। एग्जैक्टली, सो 0th पोजीशन इज व्हाट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। सो क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, सो 0th पोजीशन इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, सो वी फाउंड आउट द सेकंड कोलिजन, कोलिजन 2। तो यहाँ पे मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई again the formula, but here we found out the second probe, so we have to go with 2 into 2। second जो probe मिला है, one first probe मिला है तो 1 into 1, second probe मिला है तो 2 into 2। so what is my answer, 2 into 2 it is what 4, so the answer will be 1993, राइट, हाँ 93। बट 1993 तो मुझे लोकेशन क्या मिला यहाँ पे, आई गॉट लोकेशन 3। ओके, आई गॉट लोकेशन 3। जस्ट चेक आउट थर्ड लोकेशन, क्या हुआ यहाँ पे, collision 3 occurred. Again collision occurs, means again I got third probe, right, third time I got collision, right, so again 1989 plus I got third time collision, so whatever will be the probe, make it square, okay, make it square, and it is mod 10, so we got what 9 plus 9 18, so we got 1998, is it right, हाँ, mod 10, so my remainder will be 8, remainder will be 8, right, so check out the 8th position, yeah, 8th position is what empty, so I can store 1989 number at 8th position. Are you getting it or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, are you sure? Yes, ma'am. Okay, fine. Fine. So this is what all about quadratic probing. I hope you will got the thing. अगर नहीं समझा है, just within a minute I will again repeat the thing. Okay, normal linear probing में हम क्या करते हैं, whatever the hash function we apply, it is like as
we find out the whatever is the position or address equal to hash of key mod max. नॉर्मल हम ऐसा करते हैं जो यहाँ पे हमने किया है, वट एवर इज माई की मॉड मैक्स. मैक्स क्या होता है, टेबल का साइज होता है. टेबल का साइज अगर मेरा 10 है तो यहाँ पे मुझे कितने बकेट बताना है, 9, 0 to 9 बकेट बताने. जैसे आप एरे का यूज करते हैं, इंडेक्स यूज करते हैं, तो 0 to 9 बकेट मुझे यहाँ पे बताने हैं. ठीक है. एंड यहाँ पे कंसिडरिंग ये है कि एक बकेट का साइज ओनली 1 एलिमेंट है, एक बकेट में एक ही एलिमेंट स्टोर होगा. ओके, दिस इज व्हाट द नॉर्मल कंसेप्ट. तो ये लीनियर प्रोबिंग का कंसेप्ट कंसिडर करते हुए हमने ये एग्जांपल को क्या किया है, यहाँ पे सॉल्व किया है. राइट. ओके, नाउ दिस इज व्हाट अबाउट क्वाड्रेटिक प्रोबिंग. क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में हमने क्या किया है कि नॉर्मल जहां तक हमको पोजीशन एम्प्टी मिल रहे हैं वहां तक हमने लीनियर प्रोबिंग का जो की मॉड 10 था वही हमने यूज किया. जहां पे एलिमेंट जहां पे पोजीशन एम्प्टी है वहां पे हमने क्या किया, ये एलिमेंट को प्लेस करते गए. बट जहां पे हमको कोलिजन ऑकर हुआ है वहां पे हमने क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का फॉर्मूला यूज किया है. क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का फॉर्मूला क्या है, हमको हैश फंक्शन अप्लाई करना है की पे. ओके, एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट की प्लस आई इंटू आई मॉड 10. सो व्हाट इज दिस आई स्क्वायर, so it is amount of the collision occurs in terms of probe. कितने probe में हमने collision हमको क्या हुआ है यहाँ पे occur हुआ है. right, so it is I into I. तो अगर first time collision occur हुआ है then we will go with 1 into 1. okay, काजल, सोनी, पेन ऑफ करो बेटा, don't mischief, behave yourself, you are matured enough. okay, so okay, no problem, but take care. So it is what I into I. So it is based on what, how number of times collision occurs. okay, so इस बेसिस पे हमने क्या किया है, इसको पूरा सॉल्व किया है. अगर आपको ये लास्ट वाला 1989 का समझा होगा तो ऐसे आप कितने भी प्रोबिंग क्या कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं. बट इससे क्या आइडेंटिफाई होता है कि सम टाइम्स क्या होता है, कोलिजन आता है, हम स्क्वायर करते जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होगा कि लोकेशन एम्प्टी भी होगा बट ड्यू टू स्क्वायर फैक्टर हमको एम्प्टी पोजीशन कभी मिलेगा ही नहीं. मतलब वो एलिमेंट इंसर्ट कभी एक आधा रेयर चांसेस ऐसा होगा कि एलिमेंट इंसर्ट भी नहीं होगा. सो दिस इज व्हाट जस्ट द ड्रॉबैक ऑफ व्हाट क्वाड्रेटिक प्रोबिंग. I hope you got this lecture. From my side, I have covered the quadratic probing. I want to start what the, just a minute.